ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ, ਬੋਰੋਨ ਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ 1s2 2s2। ਔਰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈਵੈਲੈਂਟ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 2 ਨਹੀਂ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਤੋਂ ਪੀ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ 2px 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਿ ਬੈਰੀਲੀਅਮ 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ S ਤੋਂ py 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਫਾਰਮ 3 ਬੌਂਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ 3 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ S ਤੋਂ P 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਕੈਨ ਫਾਰਮ 4 ਬੌਂਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਤੋਂ ਅਨਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ S ਆਰਬਿਟਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 P ਆਰਬਿਟਲਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ px py ਐਂਡ pz। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 3 px py pz ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ S ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੇਗਾ px py pz। ਸੋ ਬੌਂਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, 4ਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 ਬੌਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਬਨ 4 ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਬਟ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਸੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਟਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ S ਔਰ P ਆਰਬਿਟਲ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨया ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ 4 ਆਰਬਿਟਲਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ may be defined as the phenomena of intermixing of the orbitals of slightly different energy so as to redistribute their energies and to give new set of orbitals of equivalent energy and shape। so beta hybridization ਦੇ ਅੰਦਰ orbital ਦੀ intermixing ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਬਿਟਲਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 2s ਐਂਡ 2p ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨया ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ between atomic orbitals of the same atoms having approximately equal energy। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਟਮ ਦੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬਰਾਬਰ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। अगला पॉइंट नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड
इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। मतलब जिदा बेटा इत्थे आपां एग्जाम्पल कीता है 1s और 3p यानी कितनी ऑर्बिटल्स मिक्स हुई 4। तो बेटा जो हाइब्रिडाइज्ड होके न्यू सैट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेगा वो भी 4 का ही बनेगा। ऑर्बिटल्स विल रिमेन सेम। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दी ना एनर्जी के अंदर कोई डिफरेंस हुंदा ना शेप के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल मे और मे नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वैलेंस सेल पार्टिसिपेट भी कर सकदियाँ और नहीं भी कर सकदियाँ। एंड लास्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन। हुण बेटा जिहड़ियां ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रही हैं वो 4 है, 3 है, 2 है, उहदे अकॉर्डिंग उन्हां दी स्पेस के अंदर जिहड़ी ज्योमैट्री है बेटा वो फिक्स हुंदी है। नाउ इन डिटेल वी विल एक्सप्लेन अगेन विथ एग्जाम्पल ऑफ कार्बन। हुण बेटा आपां कार्बन का कॉन्फिगरेशन करते हैं 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 आफ्टर प्रमोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन। प्रमोशन के बाद बेटा ये कॉन्फिगरेशन है। प्रमोशन तो पहला इत्थे 2 सी और ए वाला इलैक्ट्रॉन इत्थे सीगा। इहदी शेप बेटा स्फेरिकल सी एस दी और ये तिन्ना दी डंबल px py pz। बट बेटा जिहड़ा हाइब्रिडाइजेशन है वो प्रोसेस होएगा इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होएगी और एक न्यू सैट बनेगा। सो बेटा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो 1s और 3b नया सैट बनादियां हैं तो बेटा जिहड़ा डंबल के अंदर दोनों लोब्स इत्थे बराबर हुंदे सी, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एक लोब बड़ा होएगा और एक लोब छोटा होएगा। अगेन सारिਆਂ के अंदर 4 ने मिक्स किया, 4 बननगे सैट और 4 का एक लोब बड़ा और एक लोब स्मॉल। जिहड़ा बेटा बिगर लोब है दैट विल फॉर्म दी बॉन्ड। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो नॉर्मल शो करते हैं बॉन्ड तो वो अंदर बराबर होंगे लोब्स का साइज़, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जड़ियाँ ऑर्बिटल्स है इन्हों का एक लोब बिगर होंगे और एक लोब स्मॉलर होंगे और सिर्फ बिगर लोब पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन च। हुण बेटा आप करना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वही पॉइंट भी जो आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, 2 कर रही हैं। सो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड केड़ियाँ बननगियाँ, उहदे बेस पर हाइब्रिडाइजेशन केड़ी होएगी और ज्योमैट्री क्या होएगी मॉलिक्यूल्स दी स्पेस के अंदर अरेंजमेंट। सो अगर 1s 3p दे नाल कंबाइन करती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होंदा है sp3। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और उदा बेटा ज्योमैट्री क्या हुई टेट्राहेड्रल। इसे तरीके नाल अगर 1s 2p दे नाल कंबाइन करती है तो हाइब्रिडाइजेशन हुंदी है sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 ज्योमैट्री ट्राइगनल। और अगर 1s 1p दे नाल कंबाइन कर दी है तो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, हाइब्रिडाइजेशन sp एंड ज्योमैट्री लीनियर। ये तो बेटा एक चार्ट है, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सो सब तो पहला आप लेंदे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1s और 3p ऑर्बिटल्स आपस के अंदर मिक्स होके 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनादियां हैं। सो 1s एंड 3p दे इंटरमिक्स, हाइब्रिडाइजेशन होंदा है और ये जो नया सैट बनता है बेटा वो इस तरीके नाल 1 लोब बिगर, सेकेंड स्मॉलर, 1 बिगर, अनदर स्मॉलर। सो जिहड़ियां 4 ऑर्बिटल्स होंदियां दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। सो जदों भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंदी है तो बेटा शेप यही होंदी है। इन्हां दे विच जिहड़ा एंगल है दैट इज़ दिस और बेटा इहदे अंदर sp3 कर रहे हैं तो s करैक्टर 25% है और p करैक्टर 75% है। एग्जाम्पल आप मीथेन का समझा सकते CH4 जिदा आप बार बार कार्बन का एक्सप्लेन कर रहे हैं सिंपली। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन जिहड़ियां हैगियां वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेंटर वाले का करना बेटा हाइब्रिडाइजेशन उसी एटम की होंदी है। बाकी एटॉमिक ऑर्बिटल जिहड़े 3 है 4 है उन्होंने तो साइड ते ओवरलैप करना है, बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल मैटर एटम की ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन करके स्पेस के अंदर एक प्रेफर्ड डायरेक्शन ले लेना है। बाकी एटॉमिक ऑर्बिटल सिंपली जिदा आप कही अंदर कोई हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कार्बन की ऑर्बिटल्स का होना है
और उन्होंने स्पेस के अंदर एक प्रैफर्ड डायरैक्शन ले लेना है और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स ने आके उन्होंने नाल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाना है। सो बेटा जिद्दां आपां कीता कार्बन का टैट्राहेड्रन इन्हें अपनी ज्योमैट्री ऑक्यूपाई कर ली। हुण हरेक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिहड़ी है वो ओवरलैप करेगी 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिहड़ा हाइड्रोजन हुंदा बेटा उसका कॉन्फिगरेशन क्या होंदा है 1s1। सो इसकी शेप क्या है स्फेरिकल। सो 4 बॉन्ड ते आके हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप कर लेंगे और ये साडा बन गया 4 कोवेलेंट बॉन्ड। और असी हाइब्रिडाइजेशन की एक्सप्लेन की है कार्बन की सेंट्रल मैटल की सेंट्रल एटम की। ये बच्चे कन्फ्यूज होंगे बच्चे लिखी जाते हैं हाइड्रोजन जोड़े बाहर थी जिन्होंने ओवरलैप करना उन्होंने कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी। हाइब्रिडाइजेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस ऑफ द सेंट्रल मैटल सेंट्रल एटम जिदा CH4 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होनी है कार्बन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। हाइड्रोजन नाल उदा कोई लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन की ऑर्बिटल्स ने जो एक बार कार्बन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप कर लिया सेम एनर्जी शेप दियाँ बन के टैट्राहेड्रॉन फॉर्म के अंदर अरेंज हो गई ज्योमैट्री के अंदर। तो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल्स ने सिंपली ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। सो बेटा इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो इनू चंगी तरह रीड कर लो। दूजा एग्जाम्पल मैं नैक्सट लैक्चर च एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।